Sachin sir, I cannot hear you properly. Okay, आपकी आवाज नहीं आ am I रही. audible? Am I audible? Am I audible Yes, now? yes sir, better sir. Good. Yes sir, you are. Sorry, मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू है सर, वो बाहर आंधी है तो लाइट गई हुई है. No problem at all. थोड़ी बहुत यहाँ भी भेज दीजिए. Anyway. We are waiting for participants to join. We are starting in a minute. Okay. All right. So, good evening, friends. My name is Kanhaiya, and I am heading the core education admission and marketing department for core education verticals of Bajaj Capital. Share Gurukul is one of them, where we teach stock market program, technical analysis, derivative, and all those things that is required to trade in the stock market, either being an investor or trader. So everything that we teach in the share market. Today, we have invited Sachin sir for a webinar on basic of technical analysis. So let me introduce Sachin sir. Sachin sir is a chartered accountant by profession, and due to his passion in the financial market, he has dedicated his time and life in the financial market. He is a technical analyst, stock market coach, finance faculty, portfolio manager, trader, investor, and CS Sachin sir plays a role and carries vast experience in investing and trading in different testing times. He is a registered SEBI NISM smart trainer, and he has delivered more than 3,000 plus hours of training for stock exchanges. Stock exchanges, leading brokerage houses, Association of Technical Market Analysis, and various leading colleges, universities, and institutions of repute. Consecutively 3 years in a row, he has been awarded by the Bombay Stock Exchange for his lecture and stock market training. So without wasting time, please join us to invite CS Sachin sir. Thank you, sir, and over to you, sir. Thank you, sir. Small correction in the introduction, sir. More than 3,500 hours of delivering lectures, experience on stock market topics, not for stock exchanges. Right, sir. Chaliye, we are continuing with our deliberations today. Today, welcome you all. Good evening, everyone. On behalf of Share Gurukul, I welcome you all. एक humble request है आप सबसे, एक बार videos on कर लीजिएगा, that will help. And विश्वास मानिएगा, जो सेशन है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. थैंक यू शिव कुमार जी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बाहर हैं, आपने फिर भी क्या किया हुआ है. थैंक यू एंड कुडोस टू यू. थैंक यू. हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं रिगार्डिंग द फैक्ट कि फाइनेंशियल मार्केट में नॉलेज कैसे लिया जाए. पहले 5 मिनट का डेलिब्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा बेसिक इतना नहीं रखूंगा, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा आज भी. पहले 5 मिनट मैं आपको नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा कि व्हाई दिस स्टॉक मार्केट इज इंपॉर्टेंट. एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियोस ऑन कर लीजिएगा प्लीज. स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और सबने अपने अपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिए ही होंगे शायद. सर कॉन्सेप्ट क्या है? इस मार्केट से बढ़िया जगह नहीं है पैसा कमाने की. एनीबडी हु डोंट एग्री विद मी प्लीज रेज हैंड्स. इस मार्केट से बढ़िया जगह पैसे कमाने की नहीं है. मजे की बात और समझिए, दिस इज द मार्केट जिसका डेस्टिनी है कि इसने ऊपर जाना है. स्टिल पीपल लूज मनी. फैक्ट है सर ये. बिकॉज अगर आपके यहाँ पे जीडीपी है, अगर आपके यहाँ पे जीडीपी ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कोई कारण नहीं है कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी. और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो उनका नो प्रॉब्लम दीपक जी. इफ इट इज द केस देन इट इज ओके. अगर
उनको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो शेयर अंडर वैल्यूड होगा, शेयर को भागना पड़ेगा, मजबूरी है। और जो अल्टीमेटली जो सामान बन रहा है कंपनी ही तो बना रही है, कोई ना कोई कंपनी, और जो टॉप की कंपनी होती चली जाएगी दैट विल अल्टीमेटली फाइंड इट्स प्लेस इन इंडेक्स। तो इंडेक्स अपने आप भागेगा जी। आप कभी मर्जी कुछ सालों बाद उठा के देख लीजिएगा, कुछ साल में हम 10-12 साल का एक पीरियड बोलते हैं, आपको जहां भी आपने एक्सचेंज का लेवल छोड़ा होगा आपको उससे ऊपर ही मिलेगा इंडेक्स, बिकॉज इट हैज अ डेस्टिनी टू मूव अप। बट साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम पीपल लूज मनी इन स्पाइट ऑफ दिस रीजन। सिर्फ एक ही कारण है जी, नॉलेज नहीं है। उस नॉलेज को लेने के लिए ही हम ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिसने वीडियोस ऑन नहीं करें प्लीज जल्दी से कर लीजिएगा। अगर मार्केट का नॉलेज हो तो इससे अच्छा ना कोई बिजनेस है, इससे अच्छा ना कोई प्लेस है। खत्म करते हैं इस बात को, आगे चलते हैं जी। दैट इज वाई इसको टेम्पल ऑफ वेल्थ बोला जाता है। मार्केट में डिफरेंट असेट क्लासेस होते हैं। आज के दिन पे आप जो समझते थे कि किसी के पास 4 पैसे हैं, कहाँ से आए, एक बार क्वेश्चन करके देखिएगा। यू विल फाइंड प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। गलत हूं तो बताइएगा। अल्टीमेटली यही दो चीजें थी, और उसमें भी मेजॉरिटी प्रॉपर्टी। उस समय का वो असेट क्लास था। आज का असेट क्लास फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल पेपर असेट है। आने वाले समय में ओवरऑल मार्केट्स में, ओवरऑल दुनिया में आप इतने बड़े वाली तेजी आती रहेगी खैर वो तो, पर हम अपनी लाइफ टाइम में इतना बड़ा तेजी देखेंगे कि और आप और मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एंड आने वाली जनरेशन वो बोलेगी जी मलाई तो ये लोग खा गए। जैसे आजादी से पहले हम लोग बोला करते थे कि जो लोग आजादी से पहले के हैं उन्होंने आजादी देखी है। क्योंकि am I not audible? Yes, sir. You are very loud and clear, sir. ओके सर, तो फिर आपका इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा सर। नितेश सर एक बार ऑफ करके ऑन कीजिएगा अपने उसको, हेडफोन को एंड ऑल दैट। अंकित जी भी बोल रहे हैं आवाज कम आ रहा है। इज इट द प्रॉब्लम विद एनी अदर? एम आई ऑडिबल क्लियरली ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देन Sir, you are clear to. डन सर, डन सर, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो वो अपने अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम है सर। आगे चलते हैं जी। पॉइंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस हैं। उस समय का वो असेट क्लास था, आज का पेपर असेट क्लास है। आपके पास, मुझे आप एक बात बताइए, अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट कहाँ करोगे? मुझे बता दो जी, प्रॉपर्टी कहाँ खरीदने, मैं खरीद लेता हूँ। ब्लैंकेट रिटर्न्स चली गई सर। गोल्ड 60,000 से ऊपर हो गया। अब मुझे बताओ ये 1 लाख कब होगा? सर इंपॉर्टेंट बात एक चीज समझिए, गोल्ड ने अकेला गोल्ड की रिटर्न नहीं दी है। 4:12 हुए, 4:15 तक ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा सारे। गोल्ड ने अकेला गोल्ड की रिटर्न नहीं दी है, गोल्ड ने आपको एक्सचेंज का भी रिटर्न दिया है। जब गोल्ड का रेट प्राइस कम हुआ करता था उस समय हमारा एक्सचेंज का रेट भी कम, इन इंडिया और यूएस के डॉलर का रेट बोल रहा हूँ, वो भी कम हुआ करता था। वो 40 वाला डॉलर 82 पहुंच गया। ये डबल इफेक्ट गोल्ड में भी तो आया। अगर आज डॉलर वही 40 का होता तो ये गोल्ड भी 30 ही का होता। ये गोल्ड की रिटर्न सिर्फ इंडिया वालों को मिली है, यूएस में नहीं मिली वो वाली। अब हम 82 पर पहुंच गए हैं क्योंकि पुराने समय में हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ करता था। डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन ऑफ आवर कंट्री एंड देयर कंट्री, एक पैरिटी थ्योरी होती है जिसके कारण हमारी करेंसी ने डेप्रिशिएट करना ही करना था। अब 82 वाला जो ये है ये 150 कब होगा डॉलर, ये 100 कब होगा? इट विल टेक टाइम। तो वो जो करेंसी का इफेक्ट था ना वो गोल्ड में खत्म हो जाएगा। अब ये चीज समझने वाली है जिसके कारण गोल्ड अब अकेले गोल्ड की रिटर्न देगा विच इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। द रिटर्न विल बी अलाइंड विद द इन्फ्लेशन, दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बड़े वाले रिटर्न्स ठंडे बस्ते में डाल के चलो, और वो 60, 62, 65 हजार वाला गोल्ड 1 लाख कब होगा? परसेंटेज रिटर्न देख लो कितनी है, 50% रिटर्न है। कितने सालों में आएगी? प्रॉब्लम है। तो जगह एक ही है जी, फाइनेंशियल मार्केट। शराफत से आ जाओ, नहीं तो बाद में आना पड़ेगा। और जिसको लाया जाता है वो आपको पता है जी, सबने मूवीज देखी हुई हैं, आया हूँ कि लाया गया हूँ। वापस आते हैं जी, अबाउट दिस कोर्स एंड कंटेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट।
अब सवाल ये है कि क्या फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज किया जा सकता है? द आंसर इज हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट को इजीली एनालाइज किया जा सकता है। उसके तरीके हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस। यदि हम उसको समझ लेते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। आई हैव बीन राइटिंग ब्लॉग ऑन निफ्टी फॉर मोर देन 10 years। सर बताने को तो थैंक यू अंकित जी। एक बात करते हैं सर, अगर चला गया तो उनकी नहीं गया तो क्या करिएगा? सर हमेशा ध्यान रखिए, आई विल नॉट नेम एनीबडी। पर पॉइंट क्या है, जहां भी होता है जिसने सामान बेचना है, जो उस चीज में इंटरेस्ट रखता है, उसकी चीज को आप उनके लेवल्स को उस नजर से मत देखा करिए, कारण सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। राइट, राइट। हाँ, आप यहाँ पर मैं बैठा बोल रहा हूँ तो मेरा भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट मान के चलिएगा सर। क्या कि सिंस वी आर हेयर फॉर पिचिंग यू द कोर्स, तो आपके पास ये राइट है, आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं अगर आपको 10 बातें बताऊंगा, कहीं 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 उसमें से कोई बढ़ा के तो नहीं बता दी। पर मेरी वो नेचर नहीं है सर, मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। लॉजिक अगर नहीं लगे तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट इज, जो अभी तक मैंने बात बोली वो लॉजिकल है सर सारी, और जितनी बोलूंगा लॉजिक से ही बोलूंगा। आगे चलते हैं जी। सवाल ये है कि फाइनेंशियल मार्केट को रीड कराया जा सकता है? हाँ जी, कराया जा सकता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। सर ये आ गया चार्ट आपके सामने, एक सिंपल सा मार्केट में कॉन्सेप्ट चलता है जी। वो क्या कि टॉपिक्स नहीं कर रहे, जस्ट फीलिंग दे रहा हूँ। हिस्टोरिकल पैटर्न के बेसिस पर एक चीज हिस्ट्री में हुई थी, वही चीज आज हुई है। बार बार हिस्ट्री में हुई तो प्राइस ऊपर गया, आज भी वही चीज हुई है जी, मैं क्या करूं? भाई साहब बाय कर लो, ऊपर ही जाएगा। शाहरुख खान की मूवी सबने देखी, यहाँ से खून निकल गया तो विलेन पिटा। गलत हूं तो बताओ। वही मंदिर की रीबर्थ वाली मूवीज में वही मंदिर की घंटियां, वही हवा का चलना और पत्तों का उड़ना, सब डेथ का पैटर्न है। कोई तो मरेगा। पॉइंट इज, सेम तरीके से पैटर्न बनते हैं। एक नॉर्मल सा आपको दो, हम कोई हम में से कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट नहीं है। मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ठंडी हवा का चलना, सर ये 6 कॉम्बिनेशन मिल गए तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बारिश आएगी। सेम इज द कॉन्सेप्ट। एक ही जगह पर अगर कई सारे इंडिकेटर बोलने लग जाएं कि भाई साहब दिक्कत है, तो शेयर गिरेगा। और एक ही जगह पर अगर कई सारे इंडिकेटर बोलने लग जाए भाई साहब तेजी है, तो शेयर चलेगा। सिंपल। तो यू नीड टू बाय एंड यू नीड टू सेल, दैट इज इट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक नॉर्मल सा एक छोटा एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। एक अप अप मूव होती है, एक डाउन मूव होती है। क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने आए हैं तो मैं शॉर्टकट में चीजों को खत्म कर रहा हूँ। प्राइस ऊपर जाता है एज इफ जैसे आप माउंटेन चढ़ रहे हो, प्राइस नीचे गिरता है जैसे वाटरफॉल, फटाफट हो जाता है जी काम। जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती दुनिया को कि भैया वापस कब आ रहा है, बिच्छू कहाँ। अब मुंह में तो सबको तेजी दिख रही होती है, मंदे में सबको मंदा दिख रहा होता है, करें क्या? करना ये है जी, यदि आपको ऐसी शक्ल दिख जाए, ये शक्ल क्या है? इट इज अ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। बड़ा ही प्यारा, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, एज इफ अ मैन स्टैंडिंग। ये उसका शोल्डर है जी, ये उसका हेड है, ये उसका शोल्डर है। एज इफ मैंने वो बाहुबली वाला कवच पाया हुआ है ऐसे वाला, मुझे उठाओ इसके अंदर फिट कर दो, हो गया जी हेड एंड शोल्डर। एज इफ आप ये सोचिए कि जब भी कभी कि कोई स्टॉक अप मूव में हो, अप ट्रेंड में हो, प्राइस ऊपर जा रहा है जी, बहुत बढ़िया ऊपर जा रहा है, और उसके बाद ऐसी शक्ल बना दे, तो जी हमने देखा है कि हिस्ट्री में होता है जी। और अगर ऐसा हो गया तो प्राइस ने गिर ही जाना है। अगर प्राइस गिर ही जाएगा तो मैं यहाँ पे क्यों बेचूं, मैं यहाँ पे क्यों बेचूं, मैं यहाँ पे क्यों बेचूं, मैं जल्दी से क्यों ना बेच दूं? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इंसानों ने बनाई है, इंसानों की फितरत है कि मैं टॉप पर बेचूं, ऐसी कोशिश रहती है, इच्छा रहती है। तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लगभग यहाँ के आसपास हुई थी, अरे भैया ये तो डाउन ट्रेंड हो गया। पर बाद में उसने सोचा यार बहुत देर हुजूर, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। फिर उसने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करे, यार ये गिरता है तो शक्ल कैसी बनाता है। तो उन्होंने हिस्ट्री में देखा यार ऐसी शक्ल बना के चलता है, तो क्यों ना मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, दिस इज नथिंग बट ए नेक। आप सोचिए चूहा चढ़ा, मेरी वीडियो की तरफ देखिएगा। आप सोचिए मेरे ऊपर एक चूहा चूहा चढ़ रहा है, चूहा आप ट्रेंड में है, यहाँ पे गया ये शोल्डर है, यहाँ पे पहुंचा, इधर पहुंच गया वो नेक है, यहाँ चढ़ा, फिसल जाएगा समझ में आता है, यहाँ पहुंचा फिर से नेक है,
फिर चला शोल्डर पर और यहाँ आ गया। जैसी ये सिलाई है, यहाँ शर्ट की सिलाई होती है, जैसे इस सिलाई से नीचे कदम रखेगा आप कहोगे सर हिलना मत। पहली पहली बार चूहे के मन में आया शायद उसने नीचे जाना है, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड टू हिम, शायद उसने उसने नीचे जाना है। लो जी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। वो क्या, हमें एक लाइन मिलानी है बाहुबली वाली, ये गले को काटती हुई। गले को काटती हुई कैसे बनानी है सर, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे। ये रहा जी पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट। मैथमेटिक्स हमें बोलता है दो लाइन को पकड़ो और उसको आगे बढ़ा दो, लाइन बन गई। इस लाइन को नेक लाइन बोलेंगे। जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूं मैं। जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज होगा, क्लोज एज रिक्वायर्ड, गो एंड शॉर्ट। ये वो समय है, बेच दो। हे प्राइस तुम्हारा तो हो गया, जाओ नीचे। हिस्टोरिकली देखा गया है कि यदि ऐसा हुआ है तो प्राइस उसके नीचे आता ही है, तो फिर मैं किसी और चीज का क्यों इंतजार करूं। जब मैंने हिस्ट्री देख ली, मैंने हिस्ट्री में बार बार पाया कि जब कभी भी ये होता था तो प्राइस गिर जाता था। आज फिर वही हुआ है। कोई कारण नहीं है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मुझे यहाँ शॉर्ट करना है। मैं शॉर्ट कैसे करूं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं, 2 मिनट के लिए टॉपिक से हट रहा हूँ। क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं, समझ में तो आ गया, गिरेगा पर करूं क्या। शेयर तो मेरे पास है नहीं, बेचूं क्या। उसके लिए वो कहते हैं भाई साहब डेरिवेटिव सीख लो। डेरिवेटिव में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसको बेच सकते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे खरीदना चाहे खरीद भी सकते हैं। शेयर खरीदोगे पूरे पैसे देने हैं, डेरिवेटिव खरीदोगे मार्जिन तक के काम हो जाएगा। प्लस आपको लगता है यार अगर ऊपर गया तो मेरा, नीचे गया तो लॉस ना हो, तो ऑप्शंस कर लो, जिसमें यू टेक अ चॉइस। इफ यू आर गोइंग अप इन योर डायरेक्शन इट इज ओके फॉर यू। लॉस में गए तो थोड़ा सा लॉस लेकर के निकल जाइए। इट इज जस्ट लाइक, मैं गया इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास, मैंने कहा भाई साहब मैं मर जाऊंगा। कहते नहीं मरोगे जी। मैं लगाओ शर्त, करो कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते सर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कुछ हो गया तो वी विल पे यू ब्ला 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 सम करोड़ रुपीस। और नहीं मरे तो मैंने कहा भाई ये 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए, 50,000, वट एवर द प्रीमियम, ये रख लेना। जिंदा रह गया तो मैं हारा, मांगने नहीं आऊंगा, रख लेना। अगर गलत हो गया तो थोड़ा सा लॉस, जीत गया तो I will take unlimited, which is the plan of an option, which is the concept of an option. तो डेरिवेटिव्स हमें सीखना साथ साथ में जरूरी है यदि हम मार्केट में काम करना चाहते हैं। जिनको डेरिवेटिव आता है उनके लिए जल्दी से आधा मिनट लगा करके, यदि हमें पता लगा शॉर्ट है तो अब क्या करिएगा। ये वो समय है जब पुट खरीदी, ये वो समय है जब कॉल्स बेची, ये वो समय है जब फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए, ये वो समय है जो तमाम बीरिश स्ट्रेटजीज आप बनाते चले जाइए। आदेश जी, देयर इज अ प्रॉब्लम टू योर एंड, बाकी सबको क्लियरली वॉइस आ रहा है, प्लीज चेक एट योर एंड। चलिए सर वापस आते हैं। तो आप ये सब काम करें, इसलिए डेरिवेटिव सीखना जरूरी है कि हमने व्यू तो बना लिया टेक्निकल के बेस पर, उस व्यू से हम मैक्सिमम बेनिफिट क्या ले पाए, उसके लिए डेरिवेटिव करना जरूरी हो जाता है। वापस आते हैं जी। ये वो लेवल है जहां पर आप शॉर्ट कर दें, और यहाँ पर शॉर्ट करें तो आप पाएंगे जैसे बचपन में कभी हम ऐसे करके नापा करते थे, राइट। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह नापना है। इस लेवल को बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। मान लिया ये 700 रुपए का रेट था और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैटर्न, लॉ पढ़ रहे हैं जी हम, ऐसा समझो 850 है जी। तो जी 850 और 700 को ऐसे करके नाप लो जी, 150 रुपये हो गए। 700 रुपये में से ऐसे करके माइनस कर दो जी, 550 का टारगेट हो गया। प्राइस गिरते 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 550 तक पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल चेंज फिर से, यदि बाई चांस ये 760 होता हाईएस्ट पॉइंट, तो फिर ये 60 रुपए के डिफरेंस को ऐसे करके नाप देते, तो नीचे आपके पास 640 का टारगेट आ गया। प्राइस गिरता गिरता वहां पहुंच जाएगा। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी खूबसूरती क्या है, जब भी हम कुछ ट्रेड लेते हैं हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई साहब टारगेट का तो पता लग गया, स्टॉप लॉस क्या है, क्या हो जाए कि मैं निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉसेस, लॉस, स्टॉप माय लॉसेस, और नहीं सहना है भैया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, इससे ज्यादा लॉस नहीं सहूंगा। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी हम करेंगे हमें स्टॉप लॉस पहले पता होगा। इट इज जस्ट लाइक ए डॉन डॉन टू मूवी, कि भैया एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, गलत हो गया तो मैं कहाँ निकलूंगा। इस पर्टिकुलर केस में आपका स्टॉप लॉस ये नेकलाइन ही होता है। प्राइस इससे ऊपर गया तो एग्जिट कर जाओ, स्टॉप लॉस हिट हो गया ये टाटा बाय बाय। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट, सोचिए। टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी कला, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या, इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को पकड़ती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगले 2 मिनट बड़े जरूरी हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो कला है जो कहती है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर खेलूंगा। मुझे लड़ाई करनी तो मैं पहलवान से थोड़ी ना करूंगा, छोटे से बच्चे से कर लूंगा, आजा भाई मैं जीतूंगा।
हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, राइट। मैं खेलूंगा तब जब हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी। कैलकुलेटेड रिस्क में ट्रेड तभी लूंगा जब थिंग्स इन आर इन माय फेवर। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 70% मान के चलते हैं हम पैटर्न्स की। इंपॉर्टेंट बात, इसको आगे बढ़ाते हैं। गलत होऊंगा तो थोड़ा लॉस दूंगा, सही होऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। मिनिमम हम 1:2 का रेशो बोलते हैं कि अगर आप रिस्क 10 रुपए ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड 20 रुपए होना चाहिए, ये मान के चलो। अगर हम इस चीज को पकड़ के रखते हैं तो विश्वास मानिएगा, इवन इफ इट इज तुक्का, स्पिन ऑफ ए कॉइन, 50% प्रोबेबिलिटी भी होगा। 10 में से आपने 5 ट्रेड गलत हुआ, 5 सही हुआ। जो गलत हुए 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए जाएंगे जी, जो सही हुए हैं तो 100 रुपए आएंगे। पैसे खोगे कैसे, ये तो बताओ। मैं कहता हूँ जी, चीजें आपकी टेबल रिवर्स हो गई। हम 70% प्रोबेबिलिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, सारे पैटर्न बाय डिफॉल्ट। जिसने 70 नहीं थे तो काहे का पैटर्न, राइट। अगर मैं कहता हूँ टेबल टर्न हो गई, आपके 7 गलत हो गए, 3 सही हैं, 7 गलत हुए 70 रुपए जाएंगे थियोरेटिकली, ब्रोकरेज को छोड़ दीजिएगा। 3 सही हुए तो 60 रुपए आएंगे। योर मैक्सिमम लॉस इज 10 रुपीज। और अगर ये हो रहा है तो भैया देख लो कर क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, अपने आप को भी समझ लो क्या कर रहे हैं हम। पॉइंट इज, अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़ करके चलेंगे, अगर हम व्यू पकड़ करके चलेंगे, रूल्स पकड़ करके चलेंगे, कोई कारण नहीं है कि आप पैसा खो दो। सर वीडियोस ऑन कर लीजिएगा प्लीज। कोई कारण नहीं है कि आप इसमें से पैसा ना कमाएं। ये वो कला है, ये वो कला है। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी इसको आपको और 2 मिनट में और दिखा रहा हूँ चीजें। अब यहाँ पर देखो जी, इसी की उल्टी परछाई, यहाँ पर सेल करना है, यही स्टॉप लॉस है, टारगेट अपने को मिल ही गया। इसी की उल्टी परछाई क्या होगी सर, प्राइस गिर रहा होगा, गिरते गिरते ये शक्ल बना देगा। उल्टा है जी, ये रहा जी, इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे जी। एवरीबॉडी ओके जी। मैं आपको 2-4 इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ, यू विल बी सरप्राइज। ओ माय गॉड, सामने दिख गया जी। इजीएस्ट पैटर्न टू आइडेंटिफाई, ये तो शुरुआत ही है जी। ये देखो जी, इजीएस्ट पैटर्न टू आइडेंटिफाई। आपकी इच्छा है आप ये भी बना सकते हैं। अब आपको सर ये तो मजाक हो गया, कुछ भी बना दोगे ना। पॉइंट ये है, जो पहले बना, जो पहले बना, पहले तो ये बना था ना, तो ये बनाएंगे। कारण ये मुझे दिखा, मैंने ट्रेड ले ली, खत्म हुई बात। उल्टा हेड एंड शोल्डर, मेरा कंधा टेढ़ा हो, कंधा मोटा हो, सिर डबल हो, ट्रिपल हो, 10 हो, फर्क। पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहा है जी। प्राइस अपने आप बना रहे तो हो रहा है जी। ये लेटेस्ट की मूवमेंट है जी। ये तो कई बार लोग कहते हैं सर पुरानी पुरानी दिखा रहे हो, नहीं तो दिखाई नहीं। आगे चलते हैं जी। आपको बड़ा ही अचंभा होगा देख करके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये देखो जी, निफ्टी ने जो 75 का लो लगाया था ना जी, इसी पैटर्न से बॉटम लगाया था। और ये वाला लेवल नोट कर दो जी, 8600 है। ये लो लगा हुआ है जी 7500 का, 7600 मान लो। 1000 पॉइंट की तेजी है जी, 9600 तक तेजी जाएगी। बात यही खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी। उसके बाद जी चलते चलते प्राइस ने एक और पैटर्न बना दिया। ये रहा जी शोल्डर, ये रहा जी हेड, और ये रहा शोल्डर। मजा आ गया जी। 10,200 पे पैटर्न बना है, 7,500 का लो है, 2,500 पॉइंट ऊपर ऐड कर लो, 12,700 का टारगेट आ गया। आराम से खेलो जी, टेंशन ही नहीं है। लुक एट द ease and the comfort this stock is giving you। और पकड़ो जी, ये रहा प्यारा सा छोटा सा शोल्डर, ये रहा हेड। डेफिनेशन क्या है, शोल्डर हेड से छोटा होना चाहिए, है ना। ये रहा पहला शोल्डर, ये रहा बड़ा सारा हेड, ये रहा शोल्डर। लो जी, ये लग गई लाइन। और प्राइस भैया इससे नीचे आओगे ना तो मैं तो भेज दूंगा, फिर मत कहना। 11,600 पे सेल आ गया जी। 11,600 पे सेल आया है, हाई लगा हुआ था 12,300 का। 900 पॉइंट का मंदा आएगा जी। 10,700 रुपये का, 700 का फर्स्ट टारगेट तो आ ही गया। और उसके बाद और पैटर्न बन गए जी, तो प्राइस गिरता चला गया। उससे पहले ये रहा जी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर, वाह जी वाह। देखते चले जाओ सर, ओ माय गॉड, हेड एंड शोल्डर। एक देखोगे 1000 मिलेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पुलिस वाले को बाय करने वाले को इन्वर्टेड बोलते हैं जी, राइट। ओ माय गॉड, इतना प्यारा कभी देखने को ना मिले। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, बहुत प्यारा भाई। मीन्स वन ऑफ द बेसिक थिंग विच एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। और बहुत ही प्यारा फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। और आपको एक और चीज दिखाऊं जी, ये लो टाटा स्टील लोगों ने कहा कि लो जी स्टील सेक्टर पलट गया। ओ माय गॉड, थोड़ा सा टेढ़ा है, अलाउड है। कितना बड़ा तेजी, और यहीं पर
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा रहा हूँ सर, कहीं पता लग रहा है कि चार्ट डिफरेंट है कि सेम स्टॉक था? बहुत बेहद एक ही जगह पर एक ही समय पर मैक्सिमम शेयरों में बाय आ जाए, हाँ, सेम सेक्टर में बाय जाए 7 हो, इसका मतलब भैया सेक्टर में एक्यूमुलेशन हो गई है, और सेक्टर में एक्यूमुलेशन हो गई है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड ने सेक्टर को पकड़ लिया है, और वंस इट इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, गो एंड बाय. दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द मार्केट एंड द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट. हम यहाँ को लंबे चौड़े सारे पैटर्न करने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको एक कला दिखानी थी. सर लाइन आधी टेढ़ी क्यों बनाते हो? ओके सर, लाइन टेढ़ी बनाने की ना प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम क्या है कि ना ऐसे है, मेरे वीडियो को देखिएगा. प्रॉब्लम क्या है, मैं इसी को हटाता हूँ, ऐसे करता हूँ, रुको. लो सर, मैंने ना चार्ट को उल्टा कर दिया और मैं इस चार्ट की ना फोटो ले ली और मैं इसको ले गया, क्योंकि ना सीधा हेड एंड शोल्डर जरा देखना आसान हो जाता है. लो सर, मैं इसको ले आया यहाँ पर. पॉइंट क्या है, व्हाट आई हैव टू डू इज, गिव मी अ सेकेंड, wait. What I have to do is I have to craft a person in between. It is a shoulder to me, it is a head, and it is a shoulder. Problem here was कि ये वाला शोल्डर छोटा है इससे. सरप्राइज अपने आप बना रहे हैं, हम पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, राइट? ये तो लोगों की मनोभावनाएं हैं. कारण प्राइस को यहाँ जाना चाहिए था, मतलब नीचे जाना चाहिए था, उल्टा था ना हमारा. तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, बाइंग सपोर्ट इतनी थी, बंदों ने यही पकड़ लिया, चल भाई. इट शुड लुक लाइक एन हेड एंड शोल्डर, इट शुड लुक लाइक अ हेड एंड शोल्डर, जहां पर आप पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहा है. लो जी सर, वापस आ गए. इट शुड लुक लाइक. तो प्रॉब्लम क्या है, मेरी लाइन सीधी हो गई या टेढ़ी हो गई विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि ना मुझे गर्दन से गर्दन मिलानी है. तो हेड हेड क्या है, हेड ये है जहां से हेड शुरू हुआ और जहां हेड खत्म हुआ, मुझे ना जी इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है. मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, दैट इज वाई द नेम टू द लाइन वाज नेक लाइन, और ये लग गई सर. डन हो गया सर? सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीधी होती है. आप सही बोल रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीधी होती हैं, राइट? पर ये ट्रेंड लाइंस कभी सीधी हुई हैं क्या सर, अगर आपने पढ़ाई हुआ है तो ट्रेंड लाइन तो टेढ़ा ही होगा ना सर, तो नेक लाइन इज ऑल्सो टेढ़ा, राइट? परफेक्ट है सर. सर ये बहुत बिगनर है सर मार्केट. अंकित सर फॉर यू. सर क्योंकि हम अभी यहाँ पर एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही तो देने आए हैं, और अगर आपको एक और चीज़ अगर दिखाऊं, अगर आप थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो सबको छोटा सा दिखाऊंगा सर, जल्दी से देख लेना क्योंकि समय नहीं होगा उसको एक्सप्लेन करने का. लो सर, ये ना निफ्टी का मंथली चार्ट है जी, ये बन गया जी निफ्टी का मंथली चार्ट, ठीक है? यदि मैं इसकी यहाँ से फोटो ले लूं और मैं इसको ले जाता हूँ जी MS पेंट पे, देखिएगा सर मजा आ जाएगा. और यदि मैं आपको बोलूं कि भैया देखो चाय पियोगे क्या, ये रहा कप, ये रहा छोटा सा हैंडल, सॉरी, इट इज अ कप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रहा छोटा सा हैंडल. कप विद हैंडल फॉर्मेशन, बेहतरीन वाला, बेहतरीन वाला. और ये ब्रेकआउट क्या है, ये है जिस दिन मोदी जो आए थे मई 2014, मार्केट ने मार्च में ही तेजी दिखा दी. और कितना कितने का बना है देखें जरा. अरे बटन ये क्यों दब रहा है, ये रहा सर, ये देखिएगा, ये लेवल है जहां पर लगभग 6300 पर बाय आया है. 6300 से लेकर के इस लेवल तक को नोट कर लो, 4500. निफ्टी में 1800 पॉइंट की तेजी है, मींस निफ्टी में 30% का तेजी आएगा तो स्टॉक तो देखो कहां तक जाएंगे, राइट? सर बेसिक फॉर्मेशन से, और मतलब मजा आ जाता है. आप ये देखिए, आप सेम स्टॉक, सेम अगर आपको पैटर्न दिखाऊं, बायोकॉन, सर देख के हैरान हो जाओगे, वाह, वो जी इतना प्यारा कप कभी दिखा है, बहुत ही प्यारा कप, बहुत ही प्यारा हैंडल. और लो जी, इतना बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कभी, कितने सालों का पैटर्न, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इतने साल पुराना पैटर्न, अब ब्रेकआउट दे रहा है. गो एंड बाय विद अ बैंग.
इस लाइन से ऊपर रहेगा बाहर चलेंगे। एक पैटर्न थोड़ी ना सर, मल्टीपल पैटर्न है। पॉइंट है सर क्रिप्टो, सॉरी लास्ट में बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। मतलब वी जस्ट वांट टू शो यू, मैं एक बार प्लीज वोल्टास, ओके। सर कह रहे हैं कि मैं जी रोज वेबिनार अटेंड करता हूँ, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है सर। प्रॉब्लम ये है, यही है कहानी सर, सबकी दुकानें अलग अलग हैं सर। सबकी दुकान कहने का मतलब, एक बंदा कपड़े की दुकान खोल के बैठा है, एक बंदा बर्तन की, एक बंदा सर्विसेज सेक्टर। सर आप अपनी जो आपको पसंद है सर, एक द्रोणाचार्य जी ने सबको सब कुछ सिखाया था, आप पसंद कर लो, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, जो आपको पसंद आ गया स्टिक टू दैट, स्टिक टू योर शेयर्स। कोई कारण नहीं है यार आप पैसे नहीं कमाओगे, कमाल कर रहे हो, ऐसा ना होता है, राइट। किसी ने अपनी करो, किसी की नहीं अपनी करो, यस दिस इज व्हाट। आप उन्हीं स्ट्रेटजीज में जो आपको कंफर्ट देती है वो स्ट्रेटजीज पकड़िए और उस पर काम करिए, एंड यू विल मेक टन्स ऑफ मनी इन द मार्केट। एनीहाउ वापस आते हैं सर। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या हम टेक्निकल एनालिसिस समझ करके मार्केट को समझ सकते हैं? हाँ जी। और यदि आप समझ सकते हो तो क्यों नहीं हम उसको काम को करते, एंड उसके बाद हम उस चीज को आगे बढ़ाएं, राइट। सर मैं नहीं लेना चाहूंगा कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल आज के दिन, बट सर अगर आप कुछ इसमें देख पा रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देख पा रहे हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितना हमने अभी अभी तक करा ठीक है। छोटी मोटी मूवमेंट्स चलती रहेंगी जब तक स्टॉक हमारे हमारी नजर में कहीं पर कोई पैटर्न नहीं है। वीकली चार्ट है जी, जब तक कहीं कोई पैटर्न नहीं बनाता, कोई कारण नहीं देता बाय करने का, तब तक हम उसे बाय नहीं करेंगे। अगर इसने कहीं पर हमें सेल करने का पैटर्न दिया था तो आप उसे सेल करेंगे। सिंपल है सर कहानी। कोई पैटर्न देगा, कोई कारण देगा, तभी तो बाय करिएगा ना, मन से थोड़ी ना बाय करेंगे। वापस आते हैं जी, छोटी मोटी मूवमेंट्स होती रहेंगी, कोई परवाह नहीं है उसमें। पॉइंट है, by simply by understanding the techniques and the technical nature of the market, we can analyze कि यार मार्केट में क्या हो सकता है और मैं पैसे कमा सकूं। मार्केट में पैसे कमाने के लिए तीन चीजों का पता होना जरूरी है। पहला, भैया बाय कब आया है। दूसरा, भैया सेल कब आया है। तीसरा, जी अभी क्या चल रहा है। बाकी तो आप अपना दिल देख लो। कई बार क्या होता है, मार्केट में बड़े अच्छे जो बाय होते हैं पर स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े होते हैं। अगर आपके बस किया तो लगा लो, नहीं तो साइड में बैठो। पर पॉइंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले एक चीज सिखाती है जो आपको किसी ने नहीं बोली होगी आज तक। वो क्या? नॉट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। पहला सबक है टेक्निकल एनालिसिस का, नॉट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। सेकंड चीज है, ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे क्या नहीं करना है, पहले वो समझो। दैट इज, अभी बाय है तो भैया बाय करूंगा, सेल नहीं करूंगा। बाय में कुछ समझ में आया कर लूंगा, नहीं तो बैठे। तो अगर आप पेशेंस से काम करेंगे, कोई कारण नहीं है नहीं कमाऊंगा, राइट। आगे चलते हैं सर। तो दिस वाज समथिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, कि आप कैसे चीजों को करें और क्या वाकई में ये ऐसी चीज है जिससे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। द आंसर इज यस। अ सिंपल, मेनी डाउ थ्योरीज हैं, पैरामीटर्स हैं एंड ऑल दैट, कई सारी चीजें हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो शेयर गुरुकुल आपको कराता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन द ब्रोशर। ओके, या हियर इट इज। वापस आते हैं जी। हियर वी गो। ये अशोक सर हैं, and here we go ahead. These are the different courses which Share Gurukul provide. That is on your advanced derivatives, technical analysis, professional, fundamental analysis and all that. सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है सर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स का मार्जिन क्या होता है, M2M क्या होता है, वगैरह एवरीथिंग। आपको डेरिवेटिव में इतना परिपक्व बना दिया जाता है कि आप इजीली स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। स्ट्रेटजीज आपको सारी समझाई जाती हैं कि अगर आपने देखा बाय क्या हुआ है तो आप बाय आया है तो आप क्या काम करें। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव्स के लिए व्यू पहले बनेगा, स्ट्रेटजी बाद में बनेगी।
मेरा व्यू है मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँ, कार से जाऊँ, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, पैदल जाऊँ, कैसे जाऊँ मेरे भाई, राइट? दिस इज टूल्स, डेरिवेटिव का स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपको बनाना सिखाया जाता है, और आप उस जब तक उसमें स्ट्रेंथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, आपका हैंड होल्डिंग छोड़ा नहीं जाता है, राइट? फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स बताए जाते हैं जी, ऑल अबाउट फ्यूचर्स। इसके बाद इंडेक्स क्या है वगैरह वगैरह बताया जाता है। ऑप्शंस, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या होता है, पुट कॉल रेशो क्या होती है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और किस तरीके से हम एडवांस स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, बुल स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, प्रोटेक्टिव कॉल पुट, वेनिला कॉल, वेनिला पुट, एंड ऑल दैट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको बताई जाती हैं। आपने कैसे अपना स्टॉप लॉस में मैनेज करना है वो, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या करना है, कॉलें बेचनी कब है, कॉलें खरीदनी कब है, टाइम वैल्यू क्या होती है जिसको थीटा बोला जाता है, थीटा फैक्टर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, किस तरह से शेयर मूव करेगा तो मेरी कॉल कितना चलेगी, मेरी पुट कितना चलेगी या गिरेगी, वट एवर द केस में भी। ये सब चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। मीन्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ डेरिवेटिव्स, जिससे आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं क्या, कि मुझे क्या करना चाहिए, which is best suited for me and which is best suited in current market scenario। इसके बाद स्टॉप लॉसेस के बारे में ऑब्वियसली डिटेल में बात कराई ही जाती है, राइट? इसके बाद आते हैं जी ऑब्वियसली रिविजन्स एंड प्रॉब्लम्स में। आपको जब तक टॉप, एक सबसे बड़ी बात जो शेयर गुरुकुल की मुझे अच्छी लगती है, एंड वी ऑलवेज आई स्पेसिफिकली लाइक टू फॉलो दैट, कि जब तक लास्ट लेवल तक हर बंदे को समझ में नहीं आ जाए, हम आगे नहीं चलना चाहते हैं, राइट? बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइंस क्या है, बॉलिंगर बैंड क्या है, पैटर्न्स क्या है, लाइन चार्ट के पैटर्न्स वगैरह, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, हमने करा, इन्वर्टेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, मल्टीपल टॉप, डबल बॉटम, मल्टीपल बॉटम्स, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, फ्लैग, कप विद हैंडल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, फ्लैग फॉर्मेशन, पीनट फॉर्मेशन, रेक्टेंगल फॉर्मेशन, वेज, ये सब क्या है, क्या इनका पर्पस है, सबके स्टॉप लॉस क्या है, सबके टारगेट क्या है, कैसे इसको बेस्ट तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर आते हैं जी कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस में एक अलग तरीके की फॉर्मेशन होती है, जिससे प्राइस की वेरी शॉर्ट टर्म की मूवमेंट में, 1 डे 2 डे प्राइस एक्शन, या 1 वीक 2 वीक प्राइस एक्शन, 3 वीक प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि टॉप पे कैसे बेचें और बॉटम पे कैसे खरीदें, उनको जो जानने की कला, वो ये उसका भी एक पार्ट है। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस कराए जाते हैं, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हेरेमी फॉर्मेशन, bearish and Heremi and bullish and Heremi. 3 types of dojis: gravestone doji, dragonfly doji, normal doji, and hammer, hanging man formation, morning star, evening star, piercing line, dark cloud cover, your gap formation, bullish gap है वगैरह वगैरह, bearish gap है, कब कैसे क्या करना है, एंड ये कुछ पैटर्न्स हैं जो डिटेल में कराए जाते हैं। इसके अलावा 3 white knight, 3 black crows, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जिसे आपको समझने की जरूरत यहाँ पर होती है, राइट? गैप थ्योरी के गैप्स कैसे मैटर करते हैं, विच इज रन अवे गैप, विच इज ब्रेक अवे गैप। गैप जैसे क्या होता है, मैं आपको छोटा सा अगर एग्जांपल दिखाऊं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं जी, सारी लाइंस को हटा देते हैं, ये देखिए, दिस इज अ गैप। गैप क्या है, कि आज के लो ने कल के हाई को टच भी नहीं करा जी, बड़े काम के होते हैं गैप। वंस वी अंडरस्टैंड द गैप, वी आर एबल टू फाइंड, यार इंपॉर्टेंट है। अगर वो गैप इंपॉर्टेंट और हमें समझ में आ गया, तो यू कैन इजीली फाइंड द रिवर्सल्स आल्सो। समटाइम्स दीस गैप्स एक्ट एज अ रिवर्सल गैप आल्सो। इसके बाद इंडिकेटर्स, ये सब हमने पैटर्न्स के नाम गिन लिए हैं, फ्लैग, पीनट, रेक्टेंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक्सेट्रा।
सभी कैंडल्स के फॉर्मेशंस भी हमने कर लिए हैं, स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन वो भी कर लिया है, करेंगे, गैप थ्योरी भी। इसके बाद आते हैं जी इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर। आरएसआई हो गया, बॉलिंगर बैंड हो गया, वॉल्यूम इंडिकेटर्स हो गए, ऑन बैलेंस वॉल्यूम हो गया, स्टोकास्टिक हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, इचीमोक हो गए, तो एमएसीडी इंडिकेटर हो गए, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में, कि जैसे मैंने बोला ना, मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, एक ही जगह पर पैटर्न भी बन रहा हो, इंडिकेटर भी बोल रहे हो बाय है, सर तो स्टॉक में बाय है ना, देयर इज नो रीजन हम क्यों नहीं करेंगे बाय, एंड कीप द स्टॉप लॉस ऑन, और बैठे रहो आराम से, क्यों दिमाग लगाना। दिस इज व्हाट दिस मार्केट हेल्प्स यू आउट। बट ध्यान रहे, एज आई ऑलवेज से, मेरा हमेशा एक मानना है, थोड़ा बोलो ज्यादा करो। ऑलवेज रिमेंबर, सर मैं अभी सबके ले रहा हूँ क्वेश्चंस ना, 10 मिनट दीजिए। पॉइंट क्या है, देखो ये मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस आपको तभी तक हेल्प करेगी जब तक आप इसके रूल फॉलो कर रहे हो। आपने देखा जी बाय है, स्टॉप लॉस ये है, दुनिया कहती है अच्छा स्टॉप लॉस था 20 रुपए का, कोई नहीं मैं तो 5 रुपए का लगा लेता हूँ, सॉरी नहीं होगा। दूसरी बात, यू हैव टू फॉलो इट अगेन। बाई चांस कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दोबारा बाय आता है तो करना है। अब आप ये नहीं बोले कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने तो शेयर चेंज कर दिया। मैंने जी पहले रिलायंस में काम करा था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं साइड में हो गया। फिर मैंने टीसीएस में करा जी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं साइड में हो गया। फिर जी मैंने एचसीएल टेक में करा था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं साइड में हो गया। और जी फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में करा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने कहा भाई साहब मैं तो काम ही नहीं करता, सॉरी। कीप हिटिंग द बाय ट्रेड्स एंड सेल ट्रेड्स इन द स्टॉक अगेन एंड अगेन। ये जो तरीका है ना सर, आप अगर बस स्टैंड के बाहर खड़े हो जाते हो और आप बोलते हो कि बस चलने वाली थी, मैंने कोशिश करी, भीड़ थी, उतर गया, सर आप बस पकड़ ही नहीं पाओगे। चलती ट्रेन में अगर इस तरीके से चढ़ोगे तो नहीं होगा। पॉइंट इज यू हैव टू फॉलो द रूल्स। रूल्स क्या हैं, अपने कुछ पैरामीटर्स इंडिकेटर समझो, और अपने कुछ शेयर पकड़ो जिनमें ट्रेड जरूर लेनी है, जिनमें ट्रेड जरूर लेनी है। और उसके अलावा जहां पर जो ट्रेड आती रहे वो आप करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। वापस आते हैं जी, प्रॉब्लम क्या है, लोगों में पेशेंस नहीं है, और उनको प्रॉब्लम ये है कि 6 दिन हो गए ट्रेड नहीं आई, आज तो ट्रेड करनी है। सर सॉरी, इस तरह नहीं होगा। देन इज, ये जो पहले डेरिवेटिव का सेशन है सारा मैं लेता हूं, इसके बाद एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ये मैं कराता हूं, इसके बाद जो प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस है ये अशोक जैन सर कराएंगे। इसमें क्या कराते हैं सर, दैट इज ट्रेंड लाइंस, अ न्यू अप्रोच टू द ट्रेंड लाइंस। उसके बाद आप खुद के चार्ट पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फिबोनाची की क्या इंपॉर्टेंस है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं। फिबोनाची एक बहुत अच्छी स्टडी है जिसको दुनिया फॉलो कर रही है, लॉ फॉलो कर, नेचर फॉलो कर रही है, राइट। हमारा ये रेशो गोल्डन रेशो है जी, फिबोनाची सीरीज में है। जितने भी आर्किटेक्ट बनते हैं दुनिया में, वो सब फिबोनाची सीरीज में बनते हैं। एक पेंटर, बहुत बढ़िया पेंटर 6 फुट के इंसान को 1.5 फुट के कैनवस पे उतार देता है, नाक बड़ी नहीं होती, कान छोटा नहीं होता, प्रोपोर्शन में सब कुछ डाल देता है, उसे पता नहीं वो फिबोनाची सीरीज यूज कर रहा है। बिकॉज वो कहते हैं सर हमारे अपने फंडे हैं, हम उसको यूज करते हैं। वो अपने फंडे बाय डिफॉल्ट फिबोनाची के बेस पे बने हुए हैं, राइट। फिबोनाची एक वो सीरीज है जिसके, आप ये देखिए हमारा कान, लेंथ एंड ब्रेड्थ, शंख, लेंथ एंड ब्रेड्थ, एक एक में से, जो आप पत्ते भी देखेंगे या तुलसी जी को भी देखेंगे, एक डंडी में से 2 डंडी निकलती है, और हर दूसरी डंडी में से 3 डंडियां निकलती है, टाइप्स। तो दैट इज, यू ऐड द फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 0 एंड सेकंड इज 1, 1 आ गया, लेटेस्ट नंबर को आंसर से ऐड करते रहे, 1+1 2, 1+2 3, 2+3 5, 3+5 8, इस तरीके से आगे चलती चली जाती है ये सीरीज। बहुत अच्छा काम करती है फिबोनाची सीरीज। इसके बाद इलेट वेव थ्योरी। इलेट वेव एक बहुत अच्छी थ्योरी है जहां जॉन इलेट जी ने निकाली थी, जो ये बोलते हैं कि अप मूव नॉर्मली 5 स्टेप में होती है, और डाउन मूव नॉर्मली 3 स्टेप्स में होती है, बड़े ब्रॉडर पिक्चर। उस 5 स्टेप्स में द मोमेंट यू आर एबल टू फाइंड द स्टेप, में माइट भी आपको थर्ड में भी पता लग गया, तो सर थर्ड के बाद 5 भी आना है।
आप उस स्टॉक को पकड़ कर बैठिए, देयर इज नो रीजन कि आपको नहीं मिलेगा। दैट इज द टाइम जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ी मूव्स आएंगी। और नॉर्मली 3 इज द लॉन्गेस्ट एंड 5 इज द शार्पेस्ट, तेजी से आती है। इसीलिए आप देखोगे जब भी टॉप लगती है वो तेजी से लगती है, मार्केट तुम तेजी से भागती चली जाती है और फिर बाद में उसकी टॉप लगती है, बिकॉज ऑफ द फिफ्थ वेव एनालिसिस। दुनिया भर के एनालिसिस को यूज करते हैं। और इसके बाद नई एक ट्रेडिंग अप्रोच जो वेलोसिटी बेस्ड हो, एक्सेलरेशन बेस्ड हो, जो कोई नए रिस्क के कॉन्सेप्ट्स, नए सेटअप्स, वो आप यहाँ पर बनाना सीखते हैं। मूविंग एवरेजेस को और अलग तरीके से कैसे यूज किया जाए वो यहाँ पर बताया जाता है। एंड हार्मोनिक पैटर्न, जो एक नए तरीके के पैटर्न अब उभर के आ रहे हैं, हालांकि कई साल हो गए। दैट इज घाटले हो गया, बटरफ्लाई हो गया, क्रैब हो गया, ड्रैगन हो गया, शार्क हो गया, बैट पैटर्न हो गया, साइफर पैटर्न हो गया। तो ये सब पैटर्न्स को स्पेशल पैटर्न है जो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। इसके अलावा डायमंड फॉर्मेशन है, वो भी कराई जाती है। इसके अलावा डिफरेंट ऑसिलेटर्स, चाहे आरओसी रेट ऑफ चेंज का ऑसिलेटर हो, या ओवरबैट बॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस इन द आरएसआई हो, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर बताई जाती हैं, हाउ यू कैन मेक बेनिफिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स में गैंग थ्योरी, गैंग जी के बारे में, हाउ यू विल कंबाइन द इलियट एंड द गैंग थ्योरी। सर, गैंग जी के बारे में आपको बता दूं, देयर वाज अ टाइम जो बोला जाता है, देयर वाज अ टाइम जब गैंग जी अमेरिका में, यूएस में बहुत बड़े ट्रेडर हुआ करते थे। तो एक चार्टर्ड प्लेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास हुआ करता था, तो एक इनके पास था। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने विच मेंटेन मोर देन 90%, हालांकि मैं 95 बोलना चाहता हूँ, सक्सेस रेशो। उन्होंने अगर बोल दिया कि वीट अगर गिर रहा था, और इन्होंने बोल दिया नहीं, मेरे हिसाब से टुडे इज द लास्ट डे, कल से वीट पलट जाएगा, तो वीट पलट गया और वो बॉटम लगा। तो दीज वर द गैंग थ्योरीज। स्क्वायर ऑफ 9 गैंग जी यूज करा करते थे, आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ 9 इज अ गैंग थिंग्स, गैंग फैंस, गैंग कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा। तो हाउ यू विल कंबाइन द इलियट वेव थ्योरी एंड द गैंग थ्योरी, उसके बारे में भी अशोक जैन सर इसमें में बताते हैं। देन इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंडस्ट्री का एनालिसिस हो गया, कैसे आप करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कैसे करेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी में फ्रॉड के चांसेस कम हो रहे हैं, कम है, या किस में फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज है, और वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी क्या है, पीई रेशियो क्या है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। ये सब चीजें आप फंडामेंटल एनालिसिस में समझते हैं, राइट। एंड अशोक जैन सर हो गए, एंड दीज आर द फैकल्टीज जो कराते हैं। दिस इज मी एंड दिस इज श्रेष्ठा मैम। तो दीज आर द फैकल्टीज जो आपको इसमें कराते हैं, राइट। नाउ आई विल टेक द सेशंस, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको उठाता हूँ। सर 1 मिनट दीजिएगा बस। सर नाउ हाउ डू सेक्टर एनालिसिस। सर इसको टेक्निकल एनालिसिस में सेक्टर एनालिसिस आराम से किया जा सकता है, जब सेशंस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। सर लेकिन सबसे सिलेबस में प्रॉफिट वर्ड को, अच्छा वो तो हो गया, ठीक है। सर एक बार वोल्ट, ओके वोल्टेज। सर बनने के बाद पैटर्न इजी टू सी, फ्यूचर में पैटर्न कैसे बनेगा, हाउ टू। सर फ्यूचर वाला आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है नितिन सर। फॉर टू यू, लाइक निफ्टी में एक शोल्डर एंड हेड बन चुका है, कैन वी एक्सेप्ट। अरे सर कमाल कर रहे हो सर, बुरा मत मानिएगा, कड़वी बात बोलने वाला हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। सर मार्केट में लोग इसीलिए पैसे खोते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो बंदा कर लेता है वो खुद भी सोचता है और दुनिया भी सोचती है कि हर पल का पता है जी, ये 10 बज के 15 मिनट में क्या होगा बताना सर। भाई साहब, भगवान जी नहीं बता सकते, बंदा कहाँ से बताएगा। पॉइंट ये है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ ये चीज दिखाता है आपने कब खरीदना है और आपने कब बेचना है। और सर ये पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम क्या है, जब पैटर्न बन रहा है इंतजार करो, पैटर्न जैसी कंप्लीट होए कूद पड़ो। कहानी ये है सर, राइट। पहले प्रेडिक्ट कुछ नहीं करना है। मार्केट में कहावत चलती है, दोज
who predict they perish, those who follow they relish. जो फॉलो करेंगे ना कि ये बन रहा है काम कर लो, वो relish करते हैं सर मार्केट में, बाकी तो सब कहानी है। ओके सर, इन पैटर्न कितनी प्रोबेबिलिटी? सर पैटर्न्स को 70% प्रोबेबिलिटी मानी जाती है, 70% नहीं है तो काहे का पैटर्न? सर चार्ट में पैटर्न कैसे यूज करें? जैसे मूविंग है सर, ये जैसे जैसे हम उसमें करेंगे, क्या कहते हैं, सेशंस में, ये यही तो कराया जाएगा जी। वैसे मैंने अभी एक चीज यूज करी, मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, चार्ट का पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है, 3 इंडिकेटर भी बोल रहे हैं बाय है, तो सर स्ट्रॉन्ग बाय है ना सर? लेकिन सब ओके, प्रॉफिट हो गया सर। आफ्टरनून रिलायंस 2500 की कॉल, जून का होल्ड। सर सॉरी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जो हम अभी इस बारे में बात करें। सर द वर्ड प्रॉफिट इसका हो गया सर, 25, अच्छा ये भी हो गया। व्हाट इज रेशियो ऑफ मैनुअल एंड प्रैक्टिकल इन दिस कोर्स? ओके सर, सारा ही प्रैक्टिकल है संजीव जी, सारा ही प्रैक्टिकल है। संजीव जी होता क्या है, जब मैं डेरिवेटिव कराता हूँ, मैं एनएससी निफ्टी की ऑप्शन चेल खोल के रख देता हूँ। थ्योरी में तो क्या ही करोगे सर, ये तो हमारे को जहाज उड़ाना सिखाना है जी, तो घर बैठे तो सीखने से रहे। टेक्निकल करेंगे तो जैसे मैंने अभी चार्ट खोल के दिखाया, टेक्निकल सारा इस पे होगा जी। और ऑप्शंस जो होंगी डेरिवेटिव, शुरू की 1-2 क्लासों के बाद, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे हम लोगों को फ्यूचर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ऑप्शन कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ये जैसे ही हम वी आर डन विद दीज 3-4 सेशंस, उसके बाद तो सारा निफ्टी ऑप्शन चेल खोल के ही होएगा जी, बिना उसके तो कर भी नहीं सकते, राइट? और बिना उसके कोई कर रहा है तो सर फिर तो भगवान ही मालिक है उसका। ओके जी, आगे चलते हैं सर। अरे ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे हूँ मैं, गिव मी ए सेकंड सर, चैट खोल लिया हमने तो। ओके जी, उसके बाद चल रहे हैं सर, 2 मिनट दीजिएगा। प्रैक्टिकल सर, व्हाट विल बी द लर्निंग टुडे? सर द लर्निंग टुडे इज that yes, technical analysis is very good thing, and once we are able to understand that, we can understand about the market, we can understand कि मार्केट में काम कैसे किया जा सकता है। और जब तक डेरिवेटिव और टेक्निकल की नॉलेज ना हो जाए, मार्केट में काम करने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस मार्केट, इसको समझना पड़ेगा, और जब तक इसके रूल्स नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू सर। सर ट्रेड कब लेनी चाहिए? सर जब टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे, आप ट्रेड ही ट्रेड है, भर भर के लो, एक नहीं 10 लो। सर कैंडलस्टिक को डिफरेंट तरह का नाम दिया हुए हैं, बेस्ट तरीका क्या है उनको दिमाग में रटने का? सर जब हम कैंडलस्टिक कराते हैं तो उसको इस तरीके से कराया जाता है कि नाम को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाता है। उसका लॉजिक साथ में बताया जाता है कि नाम कैसे, क्या कारण है कि आप इसको ये रखें, तो नाम आराम से याद हो जाते हैं सर, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं सर जो कराऊंगा लॉजिक से कराऊंगा, कारण रटना तो महापाप है। इस तरीके से इसे करा दूंगा सर कि सोते सोते भी आंसर दे दोगे। नाम मत रटो बस, अच्छा वो डिजाइन, ओके थैंक्स। सर कैन यू टेल अबाउट क्रिप्टो करेंसी? लास्ट में बात करते हैं, कैन यू प्लीज? Bhanuji, I don't have any problem in giving lectures in English to because both are my comfortable tongues. But normally we have seen that most of the people who normally attend the class, they like कि आप हिंदी में बात करें. That is why I am doing it Hindi. Reason, if Hindi is a mother tongue for majority of the persons, then विश्वास मानिएगा, हिंदी के examples and हिंदी के pitches, they always relish, and ती चीजें उनके दिमाग में घुस जाती हैं. This is how they find it interesting. But yes, if you want a session purely to be English, then my guidance to you is, please do mention that to the Share Gurukul, because normally when we take the sessions, since most of the people belong to the north or Hindi specific persons, normally they all prefer to speak in Hindi. So if you have specific love for English, please do mention them in advance, so that they will put you only in that session, only in that batch where English teaching is there. सर हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है सर, खुशी के साथ गम भी आएंगे, बड़ी सीधी सी बात है। ये मार्केट ऐसी है, भगवान जी भी आ जाए उनका स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा। अगर आप सोचते हो जी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, या कोई बंदा बोलता है कि जी मेरे को तो सब आता है, मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सर उसके सामने खड़े होने की जरूरत है, भाग जाओ वहां से। उससे बड़ा झूठ इस मार्केट में हो नहीं सकता। सर
कभी कभार मार्केट वन साइड होती है और हमारा होल्ड तो हो जाता है, वहाँ बहुत लॉस होता है। सर द पॉइंट इज दिस, मार्केट में तीन ही चीजें हैं, कब तक होल्ड करके रखना है। जब भी आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो वहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। उस कॉन्सेप्ट का तरीका क्या है, आप अपनी एपिटाइट देखें, आपकी एपिटाइट क्या है। अगर आपकी एपिटाइट इन्वेस्टर वाली है और खाए पिए रजे बंदे बैठे हो, तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज करो। और आपको लगता है नहीं यार, मैं तो पहले बस अभी तो नया ही आया था, या पहले लॉस खा के बैठा हूँ, ये है वो है, या मेरी एपिटाइट छोटी है, तो अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो डिजाइन करेंगे, हम करवाएंगे उसको कैसे करना है आपने। बिकॉज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कब किस सिचुएशन में कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पर ध्यान रहे, एक तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज नॉट फिट फॉर ऑल। सारे के सारे डबल एक्सल थोड़ी ना पालेंगे, राइट। कोई लार्ज पाएगा, कोई स्मॉल पाएगा, कोई सिंगल एक्सल पाएगा, कोई ट्रिपल एक्सल पाएगा। कहानी क्या होती है, आप अपना रिस्क एपिटाइट देखें, आपका दिल कब घबराता है वो देखें, और उस तरीके से कहें जी मेरे तो ज्यादा घबराता है, तो भैया छोटे वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। ना जी मैं तो बड़ा दिलेर हूँ, तो बड़े वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स। क्योंकि बोला जाता है आप कौन है। जब हम सेशंस लेंगे तो मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप कौन है। कौन से मतलब, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, मीडियम टर्म ट्रेडर। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ये अभी कन्हैया जी बताएंगे आपको। पास स्टूडेंट्स कितने कमाते हैं, कन्हैया जी बताएंगे आपको। सर एक बात बताऊं, रिमेंबर वन थिंग, आज आपने नितिन जी जो देखा, आप ना भी लो कोर्स, दो पैटर्न आपने समझ लिए हैं। आप एक काम करना, 50 स्टॉक्स को फिल्टर मारना जो आपकी पसंद के हों, उसमें देखना ये पैटर्न कब बने थे, वैसे काम करे कि नहीं करे। जो हिस्ट्री में काम कर रहे हैं यार, कोई कारण नहीं है फ्यूचर में नहीं काम करेंगे। सर एनी क्लासरूम प्रोग्राम, नो सर, इट इज बिकॉज होता क्या है सर, पीपल आर फ्रॉम ऑल ऑल ओवर द प्लेसेस, तो उनको एक जगह पर फिजिकली कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता है। हु टेकन योर कोर्स। अच्छा नितिन जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार दोबारा बताइएगा कि मेरा कोर्स किसने लिया था। सर हम पिट के सीखने वालों में से हैं, कारण उस समय कोई पढ़ाने वाला नहीं होता था। वी आर इन दिस मार्केट सिंस 1998। उस समय टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कुछ नहीं कराया जाता था। मार्केट को पढ़कर खुद रातें काली करके हमने एनालिसिस करा है, एंड बाय दिस वी आर एबल टू डू वेरी गुड इन दिस मार्केट। टुगेदर विद द फैक्ट, आई राइट अ ब्लॉग ऑन निफ्टी ऑल्सो। 10 साल हो गए जी लिखते को, हर हफ्ते लिखता हूँ कि अगले हफ्ते क्या होगा, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल्स। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, जितनी भी टॉप से बॉटम है आपको लगने से पहले मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। बहुत कम सिचुएशन होती है दैट वी रिमेन रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी मूव विद द फ्लो ऑफ द इंडेक्स। वट वट विद द वॉइस, सर वॉइस तो आपकी प्रॉब्लम है। कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, सॉफ्टवेयर यूज फॉर टेक्निकल। सर सॉफ्टवेयर क्या है, आपको जो कराया जाता है, दो सॉफ्टवेयर पर कराया जाता है। मैं अपना पेड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पाइडर आइरिस प्लस है, पेड सॉफ्टवेयर है। आपको जो मैं कराऊंगा, investing.com पर आपकी हैंड होल्डिंग करूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर आपको मैं अपनी चीजें कराऊंगा और वो सिखाऊंगा। उसके बाद शेयर गुरुकुल हैज अ टाई अप विद मेटास्टॉक। आपके सिस्टम पर मेटास्टॉक को डाउनलोड करा जाता है, मेटास्टॉक की ट्रेनिंग दी जाती है मेरे सेशंस के बाद, क्योंकि अशोक जैन सर सारा मेटास्टॉक पे कराते हैं, वो फिर मेटास्टॉक पर आपको कराएंगे। जितने भी, सिंस मेरा फोरे पोजिशनल ट्रेडिंग में है, आई डोंट लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, मेरा ऐसा मानना है इंट्राडे ट्रेडिंग से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं, मगजमारी ज़्यादा है। पोजिशनल इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये मेरा फोरे है जी। जो इंट्राडे ट्रेडिंग या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड अदर्स, इन्वेस्टिंग एंड पोजिशनल एंड स्विंग, वो सारी चीज़ें अशोक जैन सर भी कराते हैं। फर्क क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग अशोक जैन सर का टॉपिक है, पोजिशनल एंड स्विंग मेरा टॉपिक है। ओके सर, यू आर गोइंग टू टीच एनी कैंडलस्टिक पैटर्न टुडे। सर जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज ये तो अभी नॉर्मल एक सेशन था, जस्ट टू फील गिव यू अ फील दैट यस टेक्निकल्स वर्क्स। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, इट इज मियरली एन सेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यस चीज़ें करी जा सकती हैं। एंड आपकी रिकॉर्डिंग शेयर, ये डिपेंड करेगा सर। कन्हैया सर आपको दे रहा हूँ बस 1 मिनट में,
most of the questions are answered. I will take 3 more minutes and after that I will leave the session to Kanhaiya sir. अब आते हैं सर क्रिप्टो की बात पे. क्रिप्टो में सर एक बड़ी सीधी सी बात है, क्रिप्टो वी डोंट लाइक एट ऑल, राइट. कारण वो असेट क्लास नहीं है जी. जो भी चीज अगर असेट क्लास नहीं है तो उस पर काम करना बेमानी है. कारण आप छोटा मोटा पैसा तो लगा सकते हो, आप बड़ा पैसा कैसे लगाओगे उस पर मेरे भाई? यू कैन नॉट पुट बिग मनी इन दैट थिंग. तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पर्सन्स उसको इग्नोर करके चलते हैं, राइट. और आते हैं सर, एक सर ने बोला था कि सर कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस कराएंगे. यस, आप देख लें सर, इस तरीके का डोजी, इसको डोजी बोलते हैं, फॉलोड बाय अ बिग ग्रीन कैंडल. हालांकि बहुत हल्का पैटर्न है ये, इंडिकेटर के साथ यूज करिएगा ज़्यादा अच्छा काम करेगा. आफ्टर सस्टेन डाउन ट्रेंड आपको ऐसा चमकता हुआ डोजी मिल जाए जैसे ये बना सर, फॉलोड बाय अ बिग ग्रीन कैंडल, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रिवर्स होने की संभावनाएं दिखा रहा है. और यदि वो रिवर्स होने की संभावना दिखा रहा है तो सर आप कोशिश कर लो रिवर्सल देखने की. इस तरीके का डोजी टुगेदर विद अ फुल बॉडी कैंडल, राइट. ओके, देन इज सर नेक्स्ट कोर्स कब से, ये सर बताएंगे. सर 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 कहीं पर असेट क्लास नहीं है. असेट क्लास वो होता है जो लीगल हो, जिसके पीछे किसी फिजिकल चीज की बैकिंग हो. फिजिकल चीज ना हो तो गवर्नमेंट की बैकिंग हो, राइट. वो असेट क्लास नहीं है सर. किसने बनाया पता नहीं. और क्रिप्टो को अगर सबने लीगल बना दिया तो मैं और आप भी घर बैठ के क्रिप्टो बनाने लग जाएंगे, राइट. बेस्ट टाइम फ्रॉम हेड एंड शोल्डर इज बेस्ट इज सर वीकली, बट हाँ डेली पर भी बहुत अच्छा काम करता है. कन्हैया सर, ऑल टू यू. Thank you so much, sir. And sir, so many questions I have seen coming related to the program. I'll just share my PPT, sir, in a moment. So friends, जहां तक प्रोग्राम की बात है, आई बिलीव सचिन सर ने पूरा का पूरा प्रोग्राम समझा दिया है. क्या हम पढ़ाते हैं, हमारे 3 लेवल प्रोग्राम्स होते हैं. फर्स्ट इज बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड एडवांस डेरिवेटिव, जिसमें कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या एक्सचेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शंस, एवरीथिंग दैट विल बी comes under the this module, first module. Second module is the technical analysis advanced module. जैसे सर ने बताया था कि ट्रेंड लाइन, चार्ट, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, एवरीथिंग दैट वी टीच in the second module of the program, that is technical analysis advanced. Third module, जो technical analysis professional part है, this is being taken by the Ashok Jain sir. So primarily focus जो उनका रहता है इस मॉड्यूल में, that is the ज्ञान Elliott wave. So these are the curriculums already sir ने दिखा ही रखा है. They are our faculty. Ashok Jain sir, he has more than 45 years of experience in stock market trading. He's already a well-known face in the stock market, technical analysis and equity research. And the second is C.S. Sachin sir. He's award winner, market analyst and trainer, chartered accountant, technical analyst, stock market course, finance faculty, and all those things I have already explained you about in the beginning of the session. He is also a 3 times award winner faculty at Bombay Stock Exchange. This is the program fee, friends. Level wise, if you choose to go, the first level that will cost you 12,500 rupees. That is basic of a stock market and advanced derivative. The second level of the program is technical analysis advanced, which will cost you 12,500. So both the level will be taken by C.S. Sachin sir. The third module, third level, that is technical analysis professional part, which will cost you 15,000 rupees. The fee of the level 3 is 15,000 rupees. And we also have developed a stock market app, in-house app, where that's a very small 7-hour smart trading course. So that will be given to you free of cost when we join this program. So altogether, the program fee level wise, if you include, it will be 44,900.
Uh, so it's a 3-in-1 program. When you choose to, join the Share Gurukul and opt for the complete technical analysis program, it will cost you 34,900 rupees. We also have a tie-up with the NBFC, through which you can avail a 0% interest loan. So what you have to do is you just have to take admission with 5,000 rupees. You can book your seat, and then the rest of the money will be converted into 6 equal EMIs. And then we also have a part payment option, so that is there. So as I mentioned, the program fee, the program fee is 34,900. So today we are giving a 10% off to those who have joined this program, those who have registered for this program and attended the session. So you can enroll by yourself by 5,000 rupees, and your program fee will be 31,410 rupees. You just have to register with 5,000 rupees, and the remaining you can get a 0% interest loan through our NBFC partners. So classes are on the weekend only, 2 hours on Saturday, 2 hours on Sunday. So it's a complete online program. Recording will be shared with you the next day of the class, so that whenever you have time, you can review it, you can recall it, so for your learning. This is a number 9711456906. You can call on this number. My team is there. They can help you, guide you, and take you through the course and everything. Any doubt if you have, you can ask from my team members. So this is the program, curriculum, everything. And if you have any question, you can ask. You can raise your hand, and I'll unmute you one by one. Friends, किसी को अगर कोई भी question है, you can you can ask in the. So the course duration 5 to 6 months. 5 से 6 महीने लेंगे आपको complete course करने में. We also offer a 10 hours live market class. So once you complete your level 1, level 2, and when you go into the level 3, you also get a 10 hours class in the live market. So Ashok Jain sir, bank, he's also a seasoned bank Nifty trader. He is a full-time trader. He is even 70 years old, but still he is a full-time trader. He will give you a 1 hour class for 2 weeks in the live market. 10-11 बजे के आसपास he will hand hold you in the live market, so that जो practical element है live market में कैसे काम होता है, वो चीज वो बताएंगे. जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है शिव कुमार जी, वो 24th से बैच स्टार्ट होगा दिस मंथ. 24th is yes Saturday. So जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा शिव कुमार जी, तब हमारा बैच स्टार्ट होगा. फर्स्ट डे ऑफ द क्लासेस गोइंग टू बी ऑन 24th. Cost of Spider Iris, I think sir 56,000. 56,000 rupees. This is 56,000 per year. Per year, right. सर टाइमिंग सैटरडे को मॉर्निंग में रहती है. हमारे 2 बैच चलते हैं, एक 9 to 11 और एक 11:30 to 1:30. सर एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर देना if I am yes 9 to 11, 11:30 to 1:30. 11:30 to 1:30. So ये 2 बैच होते हैं.
आई एम श्योर कि सर सारे इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपके डाउट्स होंगे, कुछ भी रहेगा तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन. Suman, Sandhya, Abhijit, they are there. They can help you, guide you with everything, any detail. सैमसंग SM आप कोर्स कर पा रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. तो सर दो ऑप्शन है, या तो आप अपना नेटवर्क को ठीक कीजिए, यू हैव टू बी इन द बेटर नेटवर्क एरिया. और सेकंड, एनीवे यू आर गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ योर क्लासेस, सो आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर सकते हैं. बट आई पर्सनली फील कि सर जो मजा लाइव में है ना, मतलब जो ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करके सीखते हैं, वो कभी भी रिकॉर्डिंग के थ्रू नहीं आ पाता. थैंक यू अरुण जी. At duration time can we earn from FNO? John Sinan sir, मैं आप I cannot able to understand your question. So anyway, by the end of your level 1, you can, I mean, start trading in the derivative section. So that is around, I mean, for 6 classes, 6 weeks जब आपकी हो जाती है सर, so you can definitely start trading in the derivative section, options and futures. Friends, if you have any question, you can ask, or otherwise we will wind up the session. सर डेफिनेटली मिल जाएगा वीडियो. अगर आपने क्लास रजिस्टर किया है तो आपके पोर्टल पे आएगा, LMS पे आपको दिख जाएगा वो. और अगर नहीं हो रहा है तो सर आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना नाम बताइए. एकेडमिक से बात करके एक बार चेक कर लेंगे. अगर हमारे एंड से कुछ प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वी विल लुक इनटू आवर सेल्फ, और फिर हम आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे देख सकते हैं. नाइन 711 सर, ये स्क्रीन पे जो नंबर है 9711456906, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सर. शिव कुमार जी, बहुत से ऐसे आते हैं स्टूडेंट जो कि आई मीन किसी का सैटरडे वर्किंग होता है, तो व्हाट दे एक्चुअली, आई मीन दे हाउ दे डू इज दैट, वो प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, सैटरडे का रिकॉर्डिंग अपना देखते हैं, जो सैटरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं, एंड देन संडे वो लाइव क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करते हैं. सो आई मीन अगर आप ऐसा कर सकते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम. अभी कर सकते हो सर, आप कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन कॉल राइट नाउ. माय टीम इज वर्किंग टुडे. All right, sir. Thank you so much, Sachin sir. I cannot see any question is unanswered.
So now we can wind up this session, sir. Thank you so much, everyone. Signing off.